गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 7 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 ऑफ क्लास 12th ऑफ राजस्थान बोर्ड, उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। जो अब है हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज ए part is if y equals to this one. So answer 15 part A, okay, y equals to e ax sin bx, then we have to prove d square y dx square, means we have to differentiate 2 times of y. D square means 2 times of differentiation, 2 times differentiation of y. So first time differentiation, so dy over dx, okay. So this is our first function fx and this is our second function gx. So first function into second function, or you can say that fx into gx की जो आइडेंटिटी है वो अप्लाई होगी, that is differentiation of first one, so differentiation of e to the power ax, और जो हमारा second function है multiply with differentiation, okay. So ये जो first function है उसका differentiation और जो सेकंड फंक्शन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन बी एक्स, और जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है e टू द पावर एक्स उसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, ओके. सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी साइन बी एक्स हमारा एज इट इज, ओके. देन डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर एक्स इज e टू द पावर ए एक्स एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स दैट इज a. देखिए साइन बी एक्स एज इट इज, यहां आइडेंटिटी अप्लाई होगी, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x दैट इज e टू द पावर x, यहां x की जगह ax है, सो हमने ये पुट किया, अगेन डिफरेंशिएशन ax का, सो a हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, सो प्लस नाउ e टू द पावर ax एंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन bx इज cos bx एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ bx दैट इज b, सो इट कैन बी रिटन एज a e टू द पावर ax, देखिए a e टू द पावर ax, ओके, साइन bx प्लस b e टू द पावर ax एंड cos bx. दिस इज आवर dy over dx, ओके, दिस इज आवर dy over dx. नाउ अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, सो d square y dx square, और यू कैन से दैट अगेन differentiate with respect to x, so we get d square y upon dx square, okay. So d square y upon dx square is, this is our constant, a is constant, so ये तो हमारा बाहर हो जाएगा, and differentiation of e to the power ax and sin bx, okay, plus b हमारा constant है बाहर हो जाएगा, और differentiation of e to the power ax cos bx, okay. It can be written as a, and देखिए you can say y equals to this one. So अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, okay, हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, so this is dy और dx. So ये जो वैल्यू है d over dx e to the power ax sin bx, this is equal to dy over dx, because d over dx and this is equal to y, this is equal to y, so यहां हमने y पुट कर दिया, okay, plus b and differentiate of this one, so again यहां fx into gx, first function into second function apply होगा, then differentiation of first one, so d over dx e to the power ax, जो हमारा फंक्शन है सेकंड फंक्शन cos bx वो मल्टीप्लाई, then plus differentiation of second one, so cos bx, और जो हमारा फर्स्ट है e टू द पावर ax वो हमारा मल्टीप्लाई, ओके. नाउ दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू a dy over dx प्लस b इंटू cos bx हमारा एज इट इज होगा, cos bx. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ax इज e टू द पावर ax एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ ax दैट इज a, प्लस this is e to the power ax, differentiation of cos bx is minus sin bx and again differentiation of bx that is b.
Now this value can be written as a dy over dx plus b. Okay, now this can be written as a e to the power ax cos bx. Okay, a and e to the power x cos bx. then ये नेगेटिव हमने बाहर ले लिया, सो इट कैन बी रिटन एज b e to the power ax sin bx. Okay, now we have to differentiate that. देखिए d square y dx square, so this is the value of d square y upon dx square. Now so d square y dx square ये रहा minus 2a dy dx. so जब ये साइड चेंज होगा so नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, so minus a dy over dx. so then plus a square plus b square y. Now this value can be written as a dy over dx plus a into b e to the power x cos bx. Okay, so cos bx you can write here a, okay, into b and e to the power ax cos bx. so e to the power ax, देखिए b here, ये जो इक्वेशन है दिस इक्वेशन. ओके, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस इक्वेशन. so here is the value dy over dx. now e to the power ax sin bx can be written as y and this is a. So this value is ay plus this is b and e to the power ax cos bx. Suppose this is equation number first. Okay, now by equation first, okay, so ये तो हमारा a हमने यहां पुट कर दिया. okay, and the b e ax cos bx, b e to the power ax cos bx. so b e to the power ax b e to the power x cos bx can be written as dy over dx और ये सिंपल हमारा इस साइड आएगा, देन माइनस. सो dy over dx माइनस ay. सो यहां जो है मैं वैल्यू पुट करके लिख सकते हैं. वी कैन राइट हियर dy over dx माइनस ay. ओके, एंड b इंटू b, सो b स्क्वायर, देखिए plus into minus minus and b into b can be written as b square. Now b square e ax sin bx, so e ax sin bx is y, so this can be written as y. so now it can be written as d square y dx square equals to a dy over dx plus multiply with this, so a dy over dx. So a dy over dx plus a dy over dx can be written as 2a dy over dx. Okay, then ये इससे मल्टीप्लाई होगा, then minus a square y and minus b square y. Okay, so it can be written as, now this value can be written as d square y dx square. Okay, minus 2a dy over dx. ओके, और यहां से अगर मैं y जो है वो कॉमन ले लूं, सो प्लस y हमने कॉमन ले लिया, देन इस साइड आएगा, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा 0. और यही जो है हमें प्रूव करना था. सो ये हमारा जो है प्रूव हुआ. दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. नाउ कम फॉर द सेकंड पार्ट. The second part is y equals to sin inverse x upon root 1 minus x square. Okay, then we have to prove 1 minus x square y2. so y2 means y2, देखिए अगर यहां पे 2 जो है स्क्वायर की फॉर्म में है, y जो है स्क्वायर की फॉर्म में है,
इसका मीनिंग तो होगा कि जो हमारी y जो है साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड स्क्वायर ऑफ दिस, सो स्क्वायर ऑफ दिस वन। बट इफ इट इज रिटन एज y2, ये जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा है, इसका मीनिंग है डी स्क्वायर y और डी एक्स स्क्वायर मीन्स 2 times differentiation of y. So y2 is 2 times differentiation of y. So in this question we have to find out 2 times of differentiation of y and 1 time of differentiation of y. Okay, y1 means 1 time differentiation, y2 means 2 time differentiation. Okay, so ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम इस साइड ले आते हैं बिकॉज यहां पहले से ऑलरेडी हमारे पास रूट में वैल्यू है और साइन इनवर्स का रूट जो है वो भी 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, सो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, इस वैल्यू को हम इस साइड ले आते हैं, देन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ओके, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। नाउ हम यहां से जो है रूट जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, सो टेक स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। अब जो हम यहां से स्क्वायर ले लें, देन व्हाट वी कैन राइट हियर, ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये y हमारा कन्वर्ट हो जाएगा y स्क्वायर में इक्वल्स टू साइन इनवर्स x एंड स्क्वायर ऑफ दिस वन। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो पहले हमारा ये दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, सो y स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 minus x square, then plus 1 minus x square and differentiation of y square और RHS में differentiation of sin inverse x and whole square of this. Now this is y square and differentiation of this, 1 का differentiation 0 minus x square का differentiation 2x, okay, plus this is 1 minus x square and differentiation of y square is 2y एंड अगेन डिफरेंशिएशन सो dy और dx, y का अगेन डिफरेंशिएशन देखिए, फर्स्ट तो अप्लाई होगा x टू द पावर n और यू कैन से y टू द पावर n, दैट इज ny, ओके, एंड y टू द पावर n माइनस 1 और देन अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy और dx। यहां पहले तो अप्लाई होगा पावर का, सो 2 देन साइन इनवर्स x एंड अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x दैट इज 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू y, देखिए दिस वैल्यू इज इक्वल टू y, सो यहां तो हम y पुट कर देंगे, ओके, और ये जो है वैल्यू, ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी, दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज माइनस 2xy स्क्वायर, ओके, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y dy और dx एंड दिस 2 कैन बी रिटन एज, ये तो हमारा y और इस 2 को हम जो है इनिशियली स्टार्टिंग में लिख देते हैं, ओके, इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज y साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज y। 2 हमारा कॉमन आके तीनों टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ओके। नाउ हमारे पास यहां रहेगा एक्स वाई स्क्वायर, ओके, और एक y जो है दोनों साइड से कैंसिल भी हो जाएगा, देखिए यहां y स्क्वायर, यहां हमारे पास y और यहां y, सो एक y जो है कॉमन लेके हमारे से यहां और यहां से कॉमन हो जाएगा, सो वी गेट माइनस एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू y कैंसिल होके 1। नाउ डिफरेंशिएट अगेन, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये तो हमारा y तो आ गया कॉमन, बार देन डिफरेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1 एंड y हमारा मल्टीप्लाई, सो y इंटू 1, ओके, प्लस दिस इज x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y दैट इज dy अपॉन dx, ओके। नाउ प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 का 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर का वी गेट 2x एंड मल्टीप्लाई विद दिस टर्म dy और dx, प्लस
first term, so 1 minus x square, and again differentiation of this, that is d square y upon dx square, and differentiation 1 is 0. Now देखिए ये हमारा होगा माइनस y एंड प्लस x dy over dx. Now this is minus 2x dy over dx, okay, and plus 1 minus x square and d square y upon dx square equals to 0. Now this can be written as 1 minus x square, so 1 minus x square this term, d square y dx square means y2, okay, minus देखिए you can write 2x dy dx and सॉरी माइनस इंटू वाई, दिस इज माइनस, एंड माइनस इंटू एक्स, ये भी हमारी टर्म जो है नेगेटिव होगी. सो माइनस एक्स डीवाई ओवर डीएक्स एंड माइनस 2x डीवाई ओवर डीएक्स, दैट इज माइनस 3. सो यू कैन राइट माइनस 3x dy over dx, okay, minus 3x dy over dx, and minus y equals to 0. So this can be written as 1 minus x square y2. ये जब साइड चेंज होगी then 3x dy over dx is y1 and sorry plus y. यही हमें सॉरी यहाँ पे a की जगह हमें x प्रूव करना है. So यही टर्म हमें प्रूव करनी थी. So this is the proof of part second. Next question, question number 16 is prove Rolle's theorem for these two functions. So let's start. Answer A, fx equals to x minus 2 and root x, okay, and since we know that x minus 2 that is a polynomial function and polynomial function is continuous and root x is also continuous. So first, since x minus 2 is x minus 2 and root x are continuous for all real values, okay, all real values, hence x minus 2 and root x is continuous for x belongs to 0 to 2. ओके, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन जो है वो कंटिन्यूअस होता है. सो x माइनस 2 रूट एक्स, इसका मल्टीप्लीकेशन इज कंटिन्यूअस फॉर 0 to 2. सो फर्स्ट कंडीशन हमारी ट्रू हुई. नाउ कम फॉर द सेकंड वन. सो नाउ सेकंड वन के लिए पहले हम इसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे. सो f डैश x दैट इज इसका डिफरेंशिएशन. सो फर्स्ट as these are two function fx and gx, first function into second function. So हमारे पास second function as it is and differentiation of first one, that is x minus 2 plus हमारे पास first function as it is and differentiation of second one. So can be written as a root x and 1 plus x minus 2 and root x का 1 upon 2 root x. So can be written as 2 root x, LCM is 2 root x. So this can be written as 2 into root x x plus x minus 2. So this is 3x minus 2 upon 2 root x. Okay. So this is f dash x. अब देखिए ये जो फंक्शन है, ओके, ये जो फंक्शन है इनडिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड वैल्यू मीन्स इन्फिनिटी कब होगा? व्हेन x इज 0. ओके, मीन्स अगर हम x की वैल्यू 0 यूज करते हैं, इफ वी यूज 0 एज x, देन इट बिकम्स इंफिनिटी. सो एट दैट पॉइंट मीन्स व्हेन x इज 0, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल. ओके, बट इफ वी रिमूव दिस 0, यानी हम अगर इस x की वैल्यू 0 यूज नहीं करें, सो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन है कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा. ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा. सिर्फ अनडिफाइंड कब होगा? व्हेन x इज 0, क्योंकि अपॉन में 0 आएगा तभी इसकी वैल्यू इंफिनिटी होगी. और अगर मैं x की वैल्यू 0 यूज ही ना करूं, सो ये अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होगी. मींस उस कंडीशन में ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा.
So we can write is differentiable for x belongs to 0 to 2, क्योंकि यहां में 0 को इंक्लूड ही नहीं करना है। ओके, अगर 0 इंक्लूड होते उस कंडीशन में ये जो है, और यू कैन से इज डिफाइंड for x belongs to 0 to 2, hence fx is differentiable। ओके, ये फंक्शन तो हमारा डिफाइन होगा, f डैश x तो डिफाइन होगा, और ये डिफरेंशिएबल किसका है, fx का, इस फंक्शन का। सो fx इज डिफरेंशिएबल फॉर x belongs to 0 to 2। सो हमारी सेकंड कंडीशन भी ट्रू हुई। नाउ कम फॉर द थर्ड वन, एंड थर्ड कंडीशन इज fa। सो a इज 0, सो f 0। सो यहां पे ये जो फंक्शन है, या ये जो फंक्शन है, इसमें x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। सो वी गेट 0 माइनस 2 इंटू रूट 0। सो वी गेट 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 0। नाउ f2 जो b है दैट इज 2। सो f2 इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू रूट 2। 2 माइनस 2 is 0, 0 into this one 0, hence f0 equals to f2। So since all three conditions are true, so by Rolle's theorem a point C belongs to 0 to 2 will exist such that f dash c equals to 0। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा f dash x आया है, दिस इज, सो इसको हम नाउ f dash c, ओके, सो f dash c हमारा होगा दैट इज, या f dash c को हम 0 के इक्वल पुट करें, 0 के इक्वल पुट किया, देन वी गेट 3c। देखिए f dash x इज दिस वन, सो f dash c इज 3c माइनस 2 अपॉन 2 रूट c इक्वल्स टू 0। सो वी गेट c इक्वल्स टू 2 बाई 3, c इक्वल्स टू 2 बाई 3, और ये 2 बाई 3 है बिलोंग्स टू 0 to 2। 2 बाई 3 means 0.66 something like this, and 0.66 belongs between 0 to 2, hence Rolle's theorem is true for this क्वेश्चन। ओके, सो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट था। इसी में हम जो सेकंड पार्ट है अब उसको सोल्व करते हैं। सो जो हमारा सेकंड पार्ट है, नाउ B part, that is fx equals to x minus 1 and x minus 3. So this can be written as x into x, x square, then minus 3x and minus x, minus 4x plus 3. Okay, so since this is polynomial function and we know that the polynomial function is continuous, since fx is polynomial function and we know that polynomial function is continuous everywhere means for all real values, hence fx is continuous for x belongs to 1 3। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हुई। नाउ कम फॉर द सेकंड वन। नाउ
एफ डैश एक्स, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं देन वी गेट 2x माइनस 4. ओके, दिस इज डिफाइंड सिंस f dash x, since f dash x is defined for all x belongs to 1 2 3, hence fx is differentiable for all x belongs to 1 3. ये देखिए, ये जो फंक्शन है जो हमने डिफरेंशिएशन किया, ये सभी जगह डिफाइन है, इस रेंज में डिफाइन है. मींस जो f डैश एक्स जैसे हमने फाइंड आउट किया है, मींस एफ एक्स, वो इस रेंज में क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. सो सेकंड कंडीशन भी हमारी ट्रू हुई. नाउ कम फॉर द थर्ड वन. नाउ एफ ए, सो ए इज 1, सो एफ 1 इज, यहां x की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, सो 3 प्लस 1 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0. एंड f3, x की जगह हम 3 पुट करेंगे, सो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, सो 3 की स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 माइनस 12 इक्वल्स टू 0. सिंस f1 इक्वल्स टू f3. ओके, सो हियर all three conditions are true. Okay, since all three conditions are true, so according to Rolle's theorem, there exists C belongs to 1 2 3 such that f dash c equals to 0. Okay, now f dash c जो है उसको हम 0 के इक्वल पुट करें. So what is the value of f dash c? So f dash x equals to this one. So f dash c equals to 2c minus 4 equals to 0. So c equals to 4 by 2, that is 2. That is 2. And 2 belongs to 1 2 3. Hence Rolle's theorem is true for this question. Okay, so ये हमारा जो है बी पार्ट है ऑफ क्वेश्चन नंबर 16. Now the next question number 17 is check Lagrangian theorem for the following. So first part is fx equals to this one. So answer 17a. So fx equals to x minus 1, x minus 2 and x minus 3. So this can be written as, देखिए x minus 1 और x minus 2 को, या हम कहें कि x minus 1 दिस इज, और इसको हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, then we get x square minus 3x minus 2x, so minus 5x and plus 6. Now this can be written as x cube, okay, minus 5x square plus 6x minus x square plus 5x and minus 6. So x cube minus 6x square plus 11x minus 6. So x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Okay, so this is fx. Now so this is polynomial, since fx is polynomial and polynomial function, and we know that the polynomial function is continuous at everywhere. So fx is, or you can say, so fx is continuous for x belongs to 0 to 4. ओके, सो ये जो फंक्शन है क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. नाउ f डैश x इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करें देन वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11. दिस इज ऑल्सो ए पोलिनोमियल, सो हेंस f dash x is defined for x belongs to 0 to 4. Hence fx is differentiable
fx is differentiable for x belongs to 0 to 4. सो यहां पे हमारे पास जो लैग्रांजियन थ्योरम है उसके दोनों जो कंडीशंस हैं वो हमारे यहां सेटिस्फाई हो रही है. सो नाउ f dash c equals to fb minus fa upon b minus a, okay, by Lagrangian theorem. So you can write here f dash c. So f dash c is 3x square minus 12x plus 11 equals to fb. So देखिए fb, fx is this one, since fx equals to x cube minus 6x square plus 11x minus 6. Okay, so fb means what is the value of b? b is 4. So f4, that is 4 cube. So 64, देखिए x की जगह 4 पुट करेंगे. So then we get 64 minus 4 4s are 16 into 6. Then we get 6 6s are 36, 3 96 plus 11 4s are 44 minus 6. So here we get 96 minus 6 102 and 4 and 4 8, 4 plus 4 8 and 6 plus 4 equals to 10. Okay, so we get 100 minus 102, so we get 6. So fb is 6 minus fa. So fa, a is 0. So यहाँ पे 0 पुट करेंगे, then 0 0 0 and minus 6. So minus 6 upon b minus a. Okay, b minus a. So b is 4 minus a is 0. This can be written as 3x square minus 12x plus 11. 6 plus 6 12 upon 4. So can we write 3. अब हम इसको इस साइड लें, then we can write 3x square minus 12x plus 8 equals to 0. अब ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करेंगे. सो अगर हम मल्टीप्लाई करें, then 8 3s are 24. मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आना चाहिए 24 और ऐड करने पे हमारे पास होगा -12. दिस इज, देखिए दिस इज एफ डैश सी. सो ये हमारे पास किसमें? सी में होगा. दिस इज सी एंड दिस इज अगेन सी, सी, सी एंड सी. So this is quadratic equation by Sridharacharya formula. We get c equals to minus b. So minus b minus, and this is b plus minus root b square. So b square means square of minus 12 equals to 144 minus 4 into a. A is 3 into c is 8 upon 2a. So 2 into 3. So here we get minus into minus plus 12. Okay. Minus into minus plus 12 plus minus, this is 144. So 144. Now 8 4s are 32 into 3. So 32 into 3. 3 2s are 6 and 3 3s are 9. So we get 96. Okay. So 144 minus 96. देखिए 96. So 144 minus 96. So we get 48. So root 48 upon 2 3s are 6. Okay. This can be written as 12 plus minus 4 root 3 upon 6. Okay. So 2 से अगर हम डिवाइड करें, then we can write 2 plus minus, देखिए डिवाइड बाय 6. So 2 and plus minus 4 से हम डिवाइड करें, then we get 2 by 3 and root 3. Okay. So 2 by root 3, this is 1 greater than 1. Okay. सो हमें जो है वैल्यू यहां पे 0 और 4 के बीच में, किसके बीच में? 0 और 4 के मिडल में जो हमें वैल्यू चाहिए. एंड दीज बोथ वैल्यूज बिलोंग्स टू 0 to 4. सो दीज वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 4.
ओके, सो यहां जो है हमारा जो लैग्रांजियन थ्योरम है वो प्रूव होती है। सो लैग्रांजियन सॉरी लैग्रांजियन नहीं, हाँ यस, लैग्रांजियन थ्योरम is true for this question। सो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट है। हमारा सेकंड पार्ट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर क्वेश्चंस। सो बी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट बी, so fx equals to this one, okay? So this is polynomial function and this is also a polynomial function, and we know that the polynomial function is continuous at everywhere since 1 plus x is continuous for x belongs to, you can say x इज लेस देन टू 2, क्योंकि यहां हमारे पास x की वैल्यू 2 से लेस है, उस कंडीशन में ये है। सो सिंस 1 प्लस एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर x इज लेस देन टू 2 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन टू 2, तब हमें ये फंक्शन यूज करना है। एंड 5 माइनस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x इज ग्रेटर देन टू 2। अब देखिए जहां पे पॉइंट चेंज हो रहा है, x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू अप टू 2 और लेस देन टू 2, माइनस इन्फिनिटी टू, सपोज दिस इज 2। सो यहां तक हमें ये फंक्शन यूज करना है, और जैसे ही x की वैल्यू 2 और ग्रेटर देन 2 होता है, तब हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। सो जहां पे फंक्शन चेंज होता है उस पॉइंट में हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। सो नाउ we will check continuity at x equals to 2। so x equals to 2 के लिए अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, सो सबसे पहले हम लेफ्ट f2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो f2, ओके, f2 इज 2 के लिए हमें ये फंक्शन यूज करना है, दैट इज 5 माइनस 2 दैट इज 3। ओके, नाउ लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो f2 माइनस h, 2 माइनस h मीन्स 2 में से हमें कुछ वैल्यू माइनस करनी है, मीन्स लेस देन टू 2, और लेस x इज लेस देन टू 2 फॉर दिस फंक्शन। सो हम यहां पे ये फंक्शन यूज करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस x, x की जगह हमें पुट करना है लिमिट h टेंस टू 0 दिस वन, एंड f2 माइनस h, सो 2 में से कुछ माइनस हुआ, सो वी गेट लेस देन 2, एंड फॉर लेस देन 2 वी विल यूज दिस फंक्शन। सो 1 प्लस एंड पुट x की जगह हम पुट करेंगे 2 माइनस h। नाउ पुट h इक्वल्स टू 0, सो 1 प्लस 2 माइनस 0 वी गेट 3। नाउ लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, सो लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h मीन्स 2 में हमें कुछ ऐड करना है, सो ग्रेटर देन टू 2, और ग्रेटर देन टू 2 के लिए हमें ये फंक्शन यूज करना है। सो 5 माइनस और x की जगह हम पुट करेंगे 2 प्लस h, यहां h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, देन वी गेट 5 माइनस 2 एंड माइनस 0, सो 3। सिंस f2 इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, hence function is continuous for x is continuous at x equals to 2। सो देखिए अब जो फंक्शन है x इक्वल्स टू लेस देन 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, ग्रेटर देन टू 2 के लिए भी कंटिन्यूअस है, और x इक्वल्स टू 2 पर भी कंटिन्यूअस है। सो हमारा पहला जो कंडीशन है, और यू कैन से दैट फाउंडेशन है लैग्रांजियन थ्योरम के लिए, वो ट्रू है। नाउ कम फॉर द सेकंड वन। सो सेकंड वन के लिए भी देखिए दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन x इक्वल्स टू लेस देन टू 2 के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा।
और दिस इज फॉर x इज ग्रेटर देन टू 2, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। सो इसका डिफरेंशिएशन देखिए 1 प्लस एक्स, ओके 1 प्लस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज 1। सो 1 इज डिफाइंड वैल्यू। सो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, ओके। अब हम आते हैं इसमें, सो 5 माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन माइनस एक्स, ये भी डिफाइंड वैल्यू है। सो ये फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, बट जो फंक्शन चेंज हो रहा है x इक्वल्स टू 2 पे, उस पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी है उसको चेक करेंगे, ओके उसको क्या करेंगे, चेक। सो नाउ वी विल चेक डिफरेंशिएबिलिटी 8x इक्वल्स टू 2। सो x इक्वल्स टू 2 पे हम जो है डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो चेक करेंगे। सो x इक्वल्स टू 2 के लिए पहले हम लेफ्ट लिमिट कैलकुलेट करेंगे। सो लिमिट एच एंड लेफ्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे। सो लिमिट एच टेंस टू 0 f2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस एच, सो इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच। सो देखिए f2 माइनस h इज दिस वन, सो 1 प्लस 2 माइनस h, दिस इज f2 माइनस h माइनस f2, सो f2 is 3, so minus 3 upon minus h. So it can be written as limit h tends to 0. So 1 plus 2 3 minus 3, so we get 0. देखिए 1 plus 2 3 minus 3, so 0, और minus h upon minus h upon minus h, that is 1. Now limit h tends to 0 f2 plus h minus f2 upon plus h. So f2 plus h is, this is limit h tends to 0. Now f2 plus h, f2 plus is this one, so 5 minus 2 plus h minus f2, so f2 is 3 upon h. Now 5, okay, 5 and minus 2 and minus 3, so 5 minus 2 and minus 3, so we get 0 and minus h upon h, so equals to limit h tends to 0 minus h upon h, that is minus 1, that is minus 1. Now since देखिए जो लेफ्ट डेरिवेटिव है, लेफ्ट डेरिवेटिव इज 1 एंड राइट डेरिवेटिव इज माइनस 1, सो बोथ आर नॉट इक्वल सिंस एल एफ डैश 2 इज नॉट इक्वल, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव एट 2 not equals to, this is left derivative at 2 and this is right derivative at 2 is not equals to r f dash 2. Hence Lagrangian theorem is not applicable here, okay, or you can say that Lagrangian theorem is not applicable here. So ये हमारा जो है एक्सरसाइज जो 7 थी, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12, ये हमने कंप्लीट की है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम हमारी जो एक्सरसाइज इंटीग्रेशन है उसको हम स्टार्ट करेंगे। सो अगर आपको मेरे क्वेश्चंस समझ में आए हैं, सो मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।